So today I have a lecture on टी.एस. एलियट। आज हम लोग टी.एस. एलियट पे बात करेंगे, खास करके टी.एस. एलियट का बायोग्राफिकल स्टडी एंड बायोग्राफिकल स्टडी के साथ साथ उनके वर्क को लेकर के बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आई हैव टेकन दिस कंटेंट फ्रॉम विकिपीडिया। My objective is only to discuss with you. My objective is only to tell you कि what are the significant points which you must memorize, which you have to store in your memory, which you have to learn it again and again. And tomorrow I will conduct a test on टी.एस. एलियट। और भी जो पहले के क्रिटिक्स पढ़ा चुके हैं उनका मैं टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स आई हैव डन फ्रॉम Aristotle to T.S. Eliot I have completed. So sharing with you this image, and in this image you will come to know about T.S. Eliot, especially his life and his works. You find that this is a picture, and in PGT पहला जो नाम है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा चुका था कि टी.एस. एलियट का फुल फॉर्म क्या है। पीजीटी दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो ये क्वेश्चन आपका यही बनता है कि टी.एस. एलियट का पूरा नाम थॉमस ईस्टर्स इलियट है। उनके ईस्टर्स लास्ट में जो हम लोग ईस्टर्न कहते हैं समटाइम्स, बट यू फाइंड दैट देयर इज आल्सो यस। तो थॉमस ईस्टर्स इलियट, एंड थॉमस ईस्टर्स इलियट ही वाज बोर्न इन 1888, डाइड इन 1965। 1888 में जन्म हुआ था, 1965 में मौत हुई थी। 1888 में अमेरिका के अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। एंड ही वाज अ पोएट, essayist, publisher, playwright, literary critic, and editor. You can say he was a prolific writer. So here you have only to remember one significant point, and what is that? Ki T.S. Eliot was born in 1888 in America and died in January 1965, 1965 में। टी.एस. एलियट का पूरा क्या नाम है? थॉमस ईस्टर्स इलियट। Here you find it at a glance. This is a picture of T.S. Eliot, which you can see. You find it Thomas Easters Eliot, 26th September 1888 he was born. And what was the name of the place? This is a very significant point. St. Louis, Missouri, US. St. Louis, Missouri. Louis, St. Louis, Missouri, US में he was born and died January 1965, aged 76, London, poet, essayist, playwright, publisher, all these things. सिटीजनशिप उनका अलग अलग जगह था। अमेरिका में वो 1888 से 1927 तक थे, और ब्रिटेन की सिटीजनशिप उनकी 1927 से लेकर 1965 तक। इट मीन दैट ही वाज बोर्न इन अमेरिका बट डाइड इन ब्रिटेन। उनका जो जन्म हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। तो these are the two important points which you have to remember. He was born in America in 1888, died in London in 1965. He lived in America from 1888 to 1927। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजीटी में कि अमेरिका में वो कब से कब तक रहे और उनको इंग्लैंड की सिटीजनशिप कब मिली थी? 1927 में। तो ही गॉट द सिटीजनशिप ऑफ लंदन, इंग्लैंड और British citizenship he got in 1927 and lived there 1965, because in 1965 he died. So he was a born American, but you will come to know he lived there from 1888 to 1927, and he got the citizenship of Britain in 1927 and died in Britain in 1965. So these are the common information which you have to remember. Again I am repeating, Thomas Easton Elliot, T.S. Eliot का पूरा full form Thomas Easton Elliot, born in 1888 and died in 1965. He was a prolific writer, PROLIFIC। प्रोलिफिक राइटर कौन होता है? वह राइटर जो साहित्य की हर विधा में अपना कलम चलाता है, उसको प्रोलिफिक राइटर कहा जाता है। जो पोएट भी हो, ड्रामेटिस्ट भी हो, एसेइस्ट भी हो, क्रिटिक भी हो, पब्लिशर भी रहे हो, तो लिटरेचर की हर विधा में उनकी कलम चली हुई है। दिस इज व्हाई ही इज नोन एज प्रोलिफिक राइटर। सेकेंड पॉइंट आई टोल्ड यू कि मॉडर्न एज के काफी वेल नोन पोएट भी रहे हैं, और ही वाज अ मॉडर्निस्ट फिगर, वी नो इट वेरी वेल। और क्या कंट्रीब्यूशन उनका लिटरेचर में रहा है, दैट इज अनदर थिंग, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। टुडे आई हैव ओनली
this particular thing, that is our biographical study. So this is a very significant point. You have to remember he was born in America in 1888, means on 26 September 1888, St. Louis, Missouri. St. Louis, Missouri, and you find died on 4th January 1965, aged 76, London, England. Poet, occupation उनका जो था poet, essayist, playwright, publisher, and another important thing कि he lived in America from 1888 to 1927, and he got the citizenship of Britain in 1927 and died there in 1965. So this was the first image which I have shared. In this image, you find about his life, about his death, about his citizenship, about his occupation, and especially what was he, a prolific writer, poet, essayist, publisher, all these things. So now just closing this image, sharing another image. You have to note down these points in your copy. You have to note down these points. What the point you find key, these are the important parts you have to note down. Now just sharing another image. Here you find this is another image. द सेम थिंग यू विल कम टू नो, वही है उनके बारे में, उनके वर्क को लेकर के कुछ है एट अ ग्लांस में. अबाउट हिज एजुकेशन यू फाइंड कि बर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में भी उनका एजुकेशन हुआ था. बर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ही गॉट एजुकेशन इन बर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड. और उनका जो एजुकेशन का पीरियड था 1905 से लेकर 1965 तक. मूवमेंट में वो मॉडर्निज्म से, मॉडर्निस्ट जो मूवमेंट था उसको लेके उन्होंने काफी काम किया, या मॉडर्निज्म या मॉडर्न एज के वो पोएट थे. उनका जो नोटेबल वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रांक 1915 में. अगर आपको याद होगा कि ये तो पोयम है, जब यही कलेक्शन ऑफ द पोयम होता है कि प्रूफ्रांक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, तो वो 1917 में आया था. तो लेकिन जो पोयम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रांक ये 1915 में आया है. दिस इज ओनली द पोयम. When you talk about Prufrock and other observations, that is the collection of the poem. The Wasteland 1922, Four Quartets 1943, Murder in the Cathedral 1935. इसके अलावा हम सारे लोग ये भी जानते हैं कि he has some other work also, जैसे द फैमिली रियूनियन है, कॉकटेल पार्टी है, द रॉक है, ये सब उनके अपने प्लेस, पोएटिक प्लेज रहे हैं. एंड पोयम में भी उनका जीरोशन है, कुछ और भी जो पोयम्स है, वी ऑल नो अ जर्नी फ्रॉम अ जर्नी टू मेजाई, दैट वाज अनदर पोयम. जीरोशन, लव सॉन्ग ऑफ जेनिफर प्रूफ्रांक, द वेस्टलैंड, पर्च नाटन, फोर क्वार्टेट, these things we find, but that is the part of the four quartet. So you have to remember these things at a glance. Already you know, there is no need to note down, but you have to go with the date. Ki the love song of Jalfar Prufrock, that is a poem, it came in 1915. The Wasteland, his epic, it published in 1922. Four quartets came in 1943. Murder in the Cathedral 1935. And one of the most important question, Nobel Prize in Literature he got in 1948. Order of Merit 1948. These are the two important, you can say, key prizes. These are the two important prizes which he got. Except it, he also got other prizes, but these are the two important prizes. So everyone, when we discuss about T.S. Eliot, when we talk about T.S. Eliot, we all must know he got Nobel Prize for Literature in 1948. Order of Merit 1948. Spouse में विवियन हे वुड. विवियन हे वुड उनकी स्पाउस 1932. विवियन हे वुड कौन है? विवियन हे वुड उनकी वाइफ रही है, हे वुड. व्हेन वी टॉक अबाउट स्पाउस, तो स्पाउस इज अ कॉमन जेंडर. ये वाइफ के लिए भी हो सकता है, हस्बैंड के लिए भी हो सकता है. तो वाइफ और हस्बैंड को केसेस में वो जो है एक कॉमन जेंडर को इंडिकेट करता है. तो विवियन हे वुड, that is what that is, he married Vivian Haywood in 1915 and September 13 1932 तक ये चीज रहा. फिर उसके बाद ही मैरिड हिज सेक्रेटरी एस्मे वेलेरी फ्लेचर से 1955 टिल हिज डेथ. तो ही हैड टू वाइफ्स, उनकी दो पत्नियां थी. ये दोनों चीज यू कैन जस्ट सी हियर. दीज आर द विवियन हेवुड एंड इसमे वेलेरी फ्लेचर. पेरेंट्स हेनरी वेयर इलियट. पेरेंट्स को एक नजर में आप देख लीजिएगा. पेरेंट्स में हेनरी वेयर इलियट, चार्लोटी चैप ईस्टन. चार्लोटी चैप ईस्टन. रिलेटिव्स एलियट फैमिली, दैट इज अनदर थिंग. सो ये कॉमन इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको मिला. नथिंग यू फाइंड अबाउट प्राइसेस. यू केम टू नो अबाउट हिज वाइव्स,
you came to know about his parents, you came to know about his what the education he got and from which institution, and then you came to know about his works, especially his poetry, yeah, his poems. These things you find. Born in St. Louis, Missouri, to prominent Boston Brahmin family. To prominent Boston Brahmin family. This is a very significant point. He moved to इंग्लैंड in 1914. और ये भी चीज पूछा जा चुका है, इंग्लैंड वो कब गए थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब वो गए हुए थे एट द एज ऑफ 25 एंड वेंट ऑन टू सेटल वर्क एंड मैरी देयर, वहीं पे सेटल हो गए, वहीं उनकी मैरिज हो गई। लेकिन उनको जो नागरिकता मिलती है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ही गॉट सिटीजनशिप इन 1927। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टीएस एलियट गॉट सिटीजनशिप या ब्रिटिश सिटीजनशिप इन 1927 एट द एज ऑफ 39। कितने साल की उम्र में? 39 की उम्र में। और इसके बाद उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया था, रिजेक्टेड, या यू कैन से कि ही गिव अप। So these things you find कि he was born in St. Louis, Missouri in 1888. One thing I want to know, जब टी.एस. एलियट का जिस सन में जन्म हुआ था, एक बड़े विक्टोरियन इंग्लिश पोएट की डेथ हुई थी। कौन थे वो? मैं सन की बात कर रहा हूँ, डेट की बात नहीं कर रहा। अर्नोल्ड। यस, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड, दैट्स गुड। Born in St. Louis, Missouri, to a prominent Boston Brahmin family, he moved to England in 1914 at the age of 25 and went on to settle, work, and marry there. He became a British citizen in 1927 at the age of 39. So these things you can just find it there. And even after recording this lecture, you can download this material. अगर आपको PDF फाइल चाहिएगा तो ये पूरा मटेरियल आपको PDF फाइल मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? बिकॉज जब आप उसके 30 मिनट के स्टडी मटेरियल में जाते हैं तो ये फाइल अलग से वहां पे क्या होती है, वहां वहीं पर ही पूरा का पूरा सेव हो जाता है PDF फाइल फॉर्म में। तो यू कैन जस्ट डाउनलोड दीज मैटर्स फ्रॉम देयर और उसका फोटो कॉपी करा सकते हैं या चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऑलरेडी विकीपीडिया पे अवेलेबल है। मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ, बट आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग एंड टेलिंग यू कि विच पार्ट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, क्या क्या पूछा गया उसको जो है वहां पे। नाउ शेयरिंग विद यू द थर्ड इमेज। इसको क्लोज करने के बाद नाउ शेयरिंग विद यू द थर्ड इमेज। एक तीसरी इमेज में शेयर कर रहा हूँ। Here you find, and in this image you will come to know about his उनका जो अर्ली लाइफ है, क्या क्या चीजें थी, all these things you find. इलियट फर्स्ट अटेंडेड, दैट वाज अनदर थिंग कि क्या क्या था, लेकिन उनका जो पहला पोयम था वो कौन सा था? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक कब आया है? 1915 में, विच वाज रिसीव्ड एज अ मॉडर्निस्ट मास्टरपीस। इट वाज followed by some of the best known poems in the English language, including The Wasteland 1922 में, The Hollow में 1925 में, Ash Wednesday 1930 में, Four Quartets 1943 में। He was also known for his seven play, उनके कुछ सेवन प्लेस भी रहे जिसमें मर्डर इन द कैथेड्रल, द कॉकटेल पार्टी, द फैमिली रियूनियन। We know he got Nobel Prize for Literature for his outstanding pioneer contribution to present day poetry. The Nobel Prize in Literature 1948 किसके लिए दिया गया? For his outstanding pioneer contribution to present day poetry. तो ये जो पैसेज है काफी इंफॉर्मेटिव है। देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन, therefore you have to note down this passage. And what the information do you find there? एक तो कि his first poem was the love song of J. Alfred Prufrock. उसके पहले भी उन्होंने जुवेनाइल पोएम्स लिखा हुआ है, but that was not greeted, it didn't get any respect in academia. But here you find that his first work was the love song of J. Alfred Prufrock in 1915, and after the love song of J. Alfred Prufrock you find the Wasteland in 1922, the Hollow in 1925, Ash Wednesday 1930, Four Quartets 1943, और उनका जो भी तमाम poetic plays रहा, Murder in the Cathedral 1935, The Cocktail Party 1949, and already I told you The Rock, already I told you The Family Reunion, and Nobel Prize he got in 1948. Now here you find his early life. अर्ली लाइफ में कोई ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन समटाइम्स ऐसा कुछ हो सकता है कि आ जाए, उसको एक रीडिंग कर लेना चाहिए। द एलियट्स वर अ बोस्टन ब्राह्मण। जब भी
एलियट्स लग गया, उसके साथ द लग गया, तो इट मीन दैट ही इज टॉकिंग अबाउट दैट फैमिली. दिस इज वाई यू फाइंड कि एलियट्स का मतलब कि हिज पेरेंट्स या जो एलियट फैमिली थी. हियर यू फाइंड अदरवाइज प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे जो है उसको स्पेसिफिक बनाया गया, द इलियट्स. इफ आई यूज द वर्ड मिस्टर एंड मिसेस, या इफ आई यूज द वर्ड की द टाटास फैमिली, या इस तरह के वर्ड वी यूज द वर्ड, तो द इलियट्स वर अ बोस्टन ब्राह्मण फैमिली. दिस वर्ड यू हैव टू रिमेंबर, ही वाज अ बोस्टन ब्राह्मण फैमिली which roots in England and New England. Eliot's paternal grandfather William Greenleaf Eliot had moved to सेंट लुइस मिसौरी. इनके दादाजी जो है कहाँ पे गए थे, सेंट लुइस मिसौरी में, जो कि अमेरिका का एक स्टेट है, वहां सेटल हुए थे, टू इस्टेब्लिश अ यूनिटेरियन क्रिश्चियन चर्च देयर. हिज फादर हेनरी वेयर इलियट. अभी इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था फादर को लेकर के, हेनरी वेयर इलियट. उनके जो फादर है उनका नाम हेनरी वेयर इलियट था. वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, president and treasurer of the hydraulic press brick company in St. Louis. His mother Charlotte Champe. Nothing you find here, only you find about his father. You came to know about, you can say, his father Henry Weir Eliot, his great grandfather William Greenleaf Eliot, about his mother Charlotte Champe Easters. तो अगर आप देखिएगा ईस्टर्स जो है, दिस इज अ पॉइंट जो ईस्टर्स है, ईस्टर्स टाइटल किसका रहा, उनकी माँ का रहा. ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाई डू यू फाइंड द टाइटल ईस्टर्स इन द नेम ऑफ टीएस एलियट, यू हैव टू से कि ईस्टर वाज द टाइटल ऑफ हिज मदर चार्लोटी चाम्पे ईस्टर्स. उनके जो है मदर की फैमिली से टाइटल जुड़ा हो, चार्लोटी चाम्पे ईस्टर्स. Who wrote poetry, was a social worker, which was a new profession in the US in the early 20th century. Eliot was the last of six surviving children, known to family and friends as. Yeah, I just want to know ki, which Brahmin family he was belonging. The Eliots were which Brahmin family he was belonging. So Boston Brahman family. Boston Brahmin family. Second thing I want to know ki Eliot came in England which year? Mm, 1914 or 1915? Eliot came in England which year? 1914 or 1915? 1914. अभी मैंने बताया था. Eliot came England in 1914. And next question, Eliot got the citizenship of England which year? 1926 or 1927? 1927. So these are the points. एक बार आप इसको कर लीजिएगा, because tomorrow I will conduct a test. तो एक बार आप उसे अच्छे ढंग से कर लीजिएगा. So I think you came to know about this image also. Closing this image and just sending you another image. बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना. इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि यू कांट इग्नोर. इन एवरी ईयर इन एनी एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PGT, if you are preparing for any other examination, UGC NET or PhD का interest test, any examination you are preparing, you will get one or two question from TSL. इसलिए मैंने बताया कि आप इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा और जितना बातें बताई जाती है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा. यू हैव टू प्रिपेयर योर नोटबुक. बाकी लेक्चर डिलीवर कर देना, उसका पीडीएफ भी वहां पड़ा होगा. नहीं नोट करना चाहते तो केवल उसका पीडीएफ पढ़ने क्या करिए, यू हैव टू डाउनलोड पीडीएफ एंड मेक द फोटोकॉपी. You have to download the PDF and make the photocopy. So just sharing another image here related to T.S. Eliot, and in this image you will come to know about his early life. उनका जो early life है वो कैसे चल रहा था, क्या क्या चीजें हुआ था, all this you find. Here you find, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उनकी स्कूलिंग को लेकर के एक दो पॉइंट आपको मिलेगा जो है कि 1986 से लेकर के कहाँ पे फिर बॉयज कॉलेज, वो कहाँ पे एक एजुकेशन का वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी हुआ था. यू फाइंड या वाशिंगटन यूनिवर्सिटी where he studied included Latin, ancient Greek, French and German. He began to write poetry when he was 14. ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिए. मैंने बताया था
कि 14 साल की उम्र में उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया, और उस समय की पोयम को क्या कहा जाएगा? जुवेनाइल पोयम। जुवेनाइल पोयम्स कौन सी होती है? वे पोयम जो कि ऐसे ही बचपन में प्रैक्टिस करते समय जो कही जाती है बचकानी पोयम्स लोग लिखते हैं। तो जुवेनाइल एट द किशोरावस्था में, जब व्हेन वी स्टार्ट टू राइट, दैट इज द। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 14 साल की उम्र में उन्होंने पोयम लिखा, और शुरू में उनके ऊपर जो प्रभाव था वो किसका था? एडवर्ड फिट्जजेराल्ड का। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ऑफ का एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने ट्रांसलेशन किया था रुबैयात का। रुबैयात किसका रचना है? उमर खयाम का, जो कि एक पर्शियन पोएट थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजीटी में। So remember that Rubaiyat, that was the work of Umar Khayyam. It was translated by Edward Fitzgerald, and T.S. Eliot was much influenced from whom he was much influenced from, yeah, not from, he was much influenced by Edward Fitzgerald. He was much influenced by Edward Fitzgerald. This point you have to keep in your mind. Edward Fitzgerald एक चीज जिसका प्रभाव किसके ऊपर था? टीएस एलियट के ऊपर था। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने क्या किया है? रुबैयात जो था एक वर्क है उमर खयाम का, दैट वाज अ पर्शियन पोएट, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। इतना आपको ध्यान में रखना है। और वो किस उम्र की एज में लिखना शुरू किए थे? एट द एज ऑफ 14। He said the results were gloomy and despairing and he destroyed them. जो भी पोयम उन्होंने लिखा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। His first published poem, A Fable for Feaster, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी पहली पब्लिश्ड पोयम क्या रही है? A Fable for Feaster. His first published poem, A Fable for Feasters, was written as a school exercise and was published in the Smith Academic in February 1905। और किसमें पहली बार पब्लिश हुई थी? स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड में। स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड इन February 1905। दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट which you have to note down. पहली बात तो at the age of 14 he started to write, but what was the poem he wrote? He was not satisfied and he said that was a gloomy or dark period. Then he just you can say he tore it, and his first published poem was what? His first published poem was his first published poem was what? His first published poem was that was a fable for feaster, was written as a school exercise and was published in the Smith Academy Record in February 1905. Also published there in April 1905 was his oldest surviving poem in manuscript, an untitled lyric, later revised and reprinted as song in the हार्वर्ड एडवोकेट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एक और बात में जो है उनकी आती है सॉन्ग के नाम से, और किसमें पब्लिश होती है? द हार्वर्ड एडवोकेट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जबकि ये सब चीजें पूछी नहीं गई है, ना ही ये चीजें पूछी जाएगी जहां तक मुझे उम्मीद है, लेकिन एट अ ग्लांस में आपको ये चीज, जब एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एडवर्ड फिट्जजेराल्ड, रुबैयात का उमर खैयाम 14 साल की उम्र में लिखना शुरू किए थे। पहला पब्लिश पोयम अ फेबल फॉर फीस्टर किसमें पब्लिश हुआ था? स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड में इन February 1905। और उनका जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोयम था जो लिरिक फॉर्म में था, वो जो है रिप्रिंट हुआ द हार्वर्ड सॉन्ग के नाम से। किसके नाम से? सॉन्ग के नाम से। द हार्वर्ड एडवोकेट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लिटरेरी मैगजीन में। ही आल्सो पब्लिश 3 शॉर्ट स्टोरीज। 1905 में उनका 3 शॉर्ट स्टोरीज आता है, जिसमें एक का नाम है बर्ड्स ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ अ व्हेल, द मैन हु वाज किंग। These are the information. He also published 3 short stories। 3 short stories उनकी आती है, और वो कब पब्लिश होती है? 1905 में। पहला कौन सा? बर्ड्स ऑफ प्रे है। दूसरा कौन सा है? अ टेल ऑफ अ व्हेल है। तीसरा कौन सा? द मैन हु वाज अ किंग। द लास्ट mentioned story reflected his exploration of the Igorot village while visiting the 1904 World's Fair of St. Louis। His interest in indigenous peoples thus antedated his anthropological studies at Harvard। So nothing you find, लेकिन ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान में रखना है। Again I would like to ask a point,
कि he started to write at the age of he started to write at the age of 40. he started to write at the age of 14. Can you tell me कि he was in his early works when he started to write at the age of 14, he was much influenced by which poet? Edward Fitzgerald, who Edward wrote Fitzgerald. Rubaiyat Umar Rubaiyat, Khayyam. Umar Khayyam ka Rubaiyat. Yeah, I just want to know what was his first published poem? His first published poem was known as Fable and Favor. A Fable for Feaster. Oh, sorry. A Fable for Fable for Feast. Feaster. Yeah, so these information you have to remember. अभी जी मुझे बताएंगे अभी जी उनकी तीनों स्टोरीज का क्या नाम था? What was the name of his story? Rama? Anyone? Yes, sir. Yeah, Rama. What was the name of नहीं, his stories? जो तीन सर स्टोरीज एक्चुअली उन्होंने ली. थोड़ी देर के लिए चले गए थे सर, कोई मेरी मदर कोई बात बुला रही। कोई बात नहीं. Shababa? What was the name of his stories? Shababa? सॉरी सर। Deepika? Deepika? Yes, sir. Words of Prey, A Tale of a Yeah. Whale, and The Man Who Was King. Okay, okay. That's it. Yeah, so you find this thing, what you find कि the Harvard advocate, Harvard University का, और I was asking कि ओम प्रकाश भाई भी जुड़े हुए हैं, दीपिका भी बता रही थी, दीपिका just told me कि Birds of Prey, A Tale of a While, The Man Who Was a King, all these things. So you find this thing कि ये सब information है which we have to keep in our mind, we don't have to miss it at any cost, because ये किसी न किसी रूप में क्वेश्चन बन सकता है या बन जाता है. Now in the next passage, Eliot lived in St. Louis, Missouri for the first 16 years. ये कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये जरूर है कि जो उनका 16 साल का शुरू का जीवन था वो उन्होंने कहाँ पे बिताया था? सेंट लुइस मिसूरी, जो उनका नेटिव प्लेस था, मतलब अ प्लेस वेयर ही वाज बोर्न. ऑफ हिज लाइफ एट द हाउस और लोकस्ट स्ट्रीट वेयर ही वाज बोर्न. कौन सा स्ट्रीट था? लोकस्ट स्ट्रीट वेयर ही वाज बोर्न. After going away to school in 1907, he only returned to St. Louis for vacations. जब उनका स्कूलिंग शुरू हुआ तो वैकेशन में ही वो आते थे. And visit despite moving away from the city. Eliot wrote to a friend that the Missouri and Mississippi have made a deeper impression on me than any other part of the world. इन दोनों जगहों ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डाला. तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये एक उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने दोस्त को लिखा था कि जो सेंट लुइस मिसूरी है और मिसिसिपी हैव मेड अ डीपर इंप्रेशन ऑन मी देन एनी अदर part of the world. These two places you have to keep in your mind. So here the information which you get, that is what ki Eliot lived there 16 years. There comes the St. Louis, Missouri, and the particular house, or you can say Locust Street, where he was born, and he went to get education in 1905. And after when he went to get education, then only in vacation he came back. Yeah, he came to St. Louis. But you will come to know that these two places, Missouri and Mississippi, it left a deep impression. Yeah, it left a deeper impression, a deep impression on Eliot. These things you find. So nothing I talk, but ये information है. Sharing with you another image. एक दूसरा इमेज मैं शेयर करूंगा, उसमें भी आप उनकी एजुकेशन कहाँ से कैसे हुई है, you will come to know about that part. Here you are getting, and in this image you will come to know about his
एजुकेशन, उनका जो एजुकेशन हुआ है उसको लेकर के आपको काफी जानकारी मिलेगी। दिस इज द पार्ट। सो यू फाइंड कि जो इलियट थे काफी कुछ उन्होंने वो किया था, अटेंडेड मिल्टन एकेडमी इन मैसाचुसेट्स, कोई बात नहीं, वो मिल्टन एकेडमी में उन्होंने उसमें वो किया फॉर अ प्रिपरेटरी ईयर वेयर ही मेट स्कोफील्ड थेयर हु लेटर पब्लिश द वेस्टलैंड। देखिए कितना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एलियट जो है अपनी एजुकेशन कहाँ पर करते हैं। एलियट अटेंडेड मिल्टन एकेडमी, कौन सी एकेडमी, मिल्टन एकेडमी इन मैसाचुसेट्स में, ठीक है। और वहां पर प्रिपरेटरी ईयर वेयर ही मेट स्कोफील्ड थेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कोफील्ड थेयर से उनकी मुलाकात होती है और स्कोफील्ड थेयर वो आदमी है हु लेटर पब्लिश्ड द वेस्टलैंड, जिन्होंने वेस्टलैंड को 1922 में पब्लिश किया था। ही स्टडीड एट हार्वर्ड कॉलेज फ्रॉम 1906 to 1909, earning a Bachelor of Arts in an elective program similar to comparative literature in 1909 and Master of Arts in English Literature the following year. Because of his year at Milton Academy, Eliot was allowed to earn his Bachelor of Arts after 3 years instead of the usual 4. नाउ यू फाइंड कि यहाँ पर जो मिल्टन एकेडमी है, उस मिल्टन एकेडमी से आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि वहीं पर उनकी मुलाकात किससे हुई थी, स्कोफील्ड थेयर से हुई थी। ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। और जो बाद में क्या करते हैं, द वेस्टलैंड को पब्लिश कराते हैं जो, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका हुआ, दैट इज अनदर थिंग। You find here what you find कि Frank Kermode writes that the most important moment of Eliot's undergraduate career was in 1908 when he discovered Arthur Simmons, the symbolist movement in literature. जब आर्थर सिमन्स एक बड़ा नाम है, ये चीज ध्यान में रखना है कि आर्थर सिमन्स एक बड़ा नाम है और जिनका वर्क था द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। और जब व्हेन इलियट वाज डूइंग ग्रेजुएशन, that time he came to know about Arthur Simmons, the symbolist movement in literature. This introduced him to Jules Laforge, Arthur Rimbaud and Paul Verlaine. जब भी सिंबोलिज्म की बात की जाती है या सिंबोलिज्म एज अ मूवमेंट, तो ये जरूर होता है कि कौन से बड़े नाम थे सिंबोलिस्ट मूवमेंट के। जो बड़े नाम है उनमें से जूल्स लैफॉर्ग, आर्थर रिम्बॉड एंड पॉल वर्लेन, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कई एग्जामिनेशन में ये चीज पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सिंबोलिस्ट मूवमेंट। तो अगर आपको इनका नाम याद रहेगा कि सिंबोलिस्ट मूवमेंट में जो लोग जुड़े हुए हैं वो कौन से थे, जूल्स लैफॉर्ज, आर्थर रिम्बॉड एंड पॉल वर्लेन, ये चीज आपको ध्यान में रखना। और जो आर्थर सिमन्स का जो एक किताब है, उस किताब का क्या नाम है, द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। तो इन सब का असर किसके ऊपर पड़ा, इलियट पे बहुत पड़ा। दैट टाइम इलियट वाज डूइंग ग्रेजुएशन। और ये बात किसने लिखी है, फ्रैंक कर्मॉड ने ये बात बताई। फ्रैंक कर्मॉड कहते हैं कि ये सब चीजें रही थी। Without Verlaine, Eliot wrote he might never have heard of Tristan Carberry and his book Les Amoureux Jaunes, a work that affected the course of Eliot's life. The Harvard advocate published some of his poems and he became lifelong friend with Conrad Aiken, the American writer and critic. Conrad Aiken का एक चीज ध्यान में रखना, कॉनरेड आइकन कौन से, कॉनरेड ईकन जो है द अमेरिकन क्रिटिक एंड राइटर थे, उससे उनका फ्रेंडशिप हुआ था। आफ्टर वर्किंग एज अ फिलोसफी असिस्टेंट at Harvard from 1909 to 1910, Eliot moved to Paris, where from 1910 to 1911 he studied philosophy at the Sorbonne. तो उन्होंने फिलोसफी वगैरह का भी वो किया था। He attended lectures by Henry Bergson and read poetry with Henry Elman Fournier. From 1911 to 1914, he was back at Harvard studying Indian philosophy and Sanskrit. इंडियन फिलोसफी और संस्कृत उन्होंने स्टडी किया था। इसी वजह से अगर आप देखिए उनके वर्क में इंडियन फिलोसफी और संस्कृत का असर है। वाइल्स अ मेंबर ऑफ द हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल, सो यू विल कम टू नो, ये इन्फॉर्मेशन कोई जरूरी नहीं उन्होंने कहा, लेकिन ये चीज जरूरी, उनका फिलोसफी में इंटरेस्ट था। पेरिस में भी उन्होंने फिलोसफी का स्टडी किया था। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आते हैं
बैक होते हैं 1911 से 14 में, तब भी इंडियन फिलासफी और संस्कृत पर उन्होंने काम किया था। यहाँ पे नोट क्या करने वाली चीज है, मिल्टन एकेडमी नोट करने वाली चीज है, वहां उनकी मुलाकात स्कोफील्ड थेयर से होती है, जो बाद में द वेस्टलैंड को पब्लिश करते हैं। फ्रैंक करमॉड ने बताया था कि उनके ऊपर किसका असर था, आर्थर सीमन की किताब द सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर का, जिसमें वो किसके बारे में जान पाते हैं, जूल्स लेफॉर्ज के बारे में, आर्थर रिम्बार्ड के बारे में, पॉल वर्लेन के बारे में, और एक अमेरिकन क्रिटिक और राइटर है जिनका नाम कॉनरेड आइकेन था, उनसे भी वो वाकिफ होते। सो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। जस्ट क्लोजिंग दिस इमेज, शेयरिंग विद यू अनदर इमेज, sharing with you another image, and in the next image you will come to know about his उनका वर्क के साथ साथ जो और भी लोगों से उनकी मुलाकात हुई, या आप कह सकते हैं उनका जो मैरिज का अपना मामला था, दिस यू विल कम टू नो। हियर यू फाइंड, और यहाँ पे यू फाइंड कि एलियट मेट एंड फेल इन लव दिस पार्टिकुलर वुमन का लेकर के, एलियट मेट एंड फेल इन लव वाज अवेयर अ स्कॉलरशिप टू मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड 1914। ही फर्स्ट विजिटेड मार्बर्ग, Germany, where he planned to take a summer program, but when the First World War broke out, he went to Oxford instead. At the time, so many American students attended Martin, the junior common room proposed a motion that this society abhor the Amer- Americanization of Oxford. It was defeated 2 years after Eliot reminded the students how much they owed American culture. Eliot wrote to Conrad Aiken, जो कॉनराड आइकन जो थे, मैंने पहले बताया था कि वो अमेरिकन क्रिटिक और राइटर रहे हैं। एलियट ने उनको लिखा था, क्या लिखा, ऑन न्यू ईयर्स ईव 1914 में, नए साल की शुरुआत से पहले, एक शाम पहले। जब भी ईव होता है, ईव का मतलब होता है कि अ डे बिफोर इन द इवनिंग, जैसे कल से 1 जनवरी 2014 शुरू होने वाली है, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2013 को उन्होंने लिखा था। जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑन द ईव ऑफ होली, on the eve of दशहरा, on the eve of क्रिसमस, on the eve of ईद। तो ईद का मतलब अ डे बिफोर इन द इवनिंग, कोई भी चीज आने वाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उससे एक दिन पहले जो है शाम को वो चीजें हुई है। उन्होंने क्या किया था 1914 ईस्वी में, पहले 1 जनवरी 1914 ईस्वी को शुरू होने से पहले उसके उसके ईव में उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, आई हेट यूनिवर्सिटी टाउन्स एंड यूनिवर्सिटी पीपल हु आर द सेम एवरीवेयर विद pregnant wives, sprawling children, many books and hideous pictures on the walls. Oxford is very pretty, but I don't like, बहुत ही बड़ी बात उन्होंने लिखा कि ऑक्सफोर्ड इज वेरी प्रिटी बट आई डोंट लाइक टू बी डेड, मैं डेड नहीं होना चाहता। इंस्टीट्यूशन तो सुंदर है, लेकिन इंस्टीट्यूशन की सुंदरता क्या हम अपने अंदर ला पा रहे या नहीं ला पा रहे, या अगर वहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अगर वहां पे रेस की प्रॉब्लम है, जेंडर की प्रॉब्लम है, कलर की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था ना, प्रॉब्लम कल्चर की चल रही थी, अमेरिकन कल्चर और ब्रिटिश कल्चर की लड़ाई चल रही थी। उन्होंने तो वही कहते हैं, अगर हम इस लड़ाई का हिस्सा हो जाएंगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा ऑक्सफोर्ड इज वेरी प्रेटी बट आई डोंट लाइक टू बी डेड। Escaping Oxford, Eliot spent much of his time in London. This city had a monumental and life-altering effect on Eliot for several reasons. So उन्होंने ये सारा चीज लिखा था अपने दोस्त को। The city had a monumental and life-altering effect on Eliot for several reasons. The most significant of which was his introduction to the influential American literary figure इजरा पाउंड। यहीं पर उनकी मुलाकात इजरा पाउंड से होती है। सो कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट हुए उनकी लाइफ में, कॉनरेड आइकन, एक जो अमेरिकन क्रिटिक है, पोएट है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरी चीज उनकी मुलाकात अब हमें इंग्लैंड में किससे होने जा रही है, एजरा पाउंड से। हम लोग ये सारे लोग जानते हैं एजरा पाउंड इतनी बड़ी शख्सियत रहे हैं कि उन्हीं के कहने पर ही उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्हीं के कहने पर उन्होंने जो है आपका यू कैन से कि जो द वेस्ट लैंड था उसको उन्होंने मिनिमाइज किया था या उसको उन्होंने शॉर्ट किया था। बहुत कुछ एजरा पाउंड का सपोर्ट उनके मतलब एजरा पाउंड से ऊपर वो इन्फ्लुएंस थे। A connection through Icon resulted in an arranged meeting, and on 22nd September 1914, Eliot paid a visit to Pound's flat. Pound is instantly deemed Eliot worth watching and was crucial to Eliot's fledgling career as a poet, as he is credited with promoting Eliot through social events and literary gatherings. Thus, according to biographer John Warden,
During his time in England, Eliot was seeing as little Oxford as possible. एलियट वाज सीइंग एज लिटिल ऑफ ऑक्सफोर्ड एज पॉसिबल, बहुत कम वो ऑक्सफोर्ड जाते थे या इस तरह की चीजें। सो यहाँ पे पूरा आपको जो है ध्यान में रखना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो क्लैश ऑफ कल्चर था। क्लैश ऑफ कल्चर को लेकर उन्होंने एक लेटर लिखा था कॉनराड आइकन को, और उन्होंने कहा कि वेस्ट कल्चर और ईस्ट अमेरिकन कल्चर और यूरोपियन कल्चर का क्लैश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशन इज वेरी ब्यूटीफुल, ऑक्सफोर्ड इज वेरी प्रेटी, बट आई डोंट लाइक टू बी डेड, मैं उसमें रह के खत्म नहीं होना चाहता हूँ। फिर उनकी मुलाकात किससे होती है? ही मेट विद एजरा पाउंड। सो दो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे केवल ध्यान में रखना है। नाउ शेयरिंग अनदर इमेज, एंड इन दिस इमेज यू विल गेट अबाउट हिज मैरिज का, उनका मैरिज जो है उसको लेकर के यू विल कम टू नो कि क्या क्या था उनकी लाइफ में, क्या क्या चीजें होती है। दिस पार्टिकुलर जो कि काफी इंफॉर्मेटिव है मेरी अपनी नजर में। हियर यू फाइंड दिस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन, यू फाइंड कि उनका क्या हुआ था। हियर यू फाइंड कि in 1961 he completed a doctoral dissertation for Harvard on knowledge and experience in the philosophy। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी important information, very important information। In 1916 in 1916 he completed doctoral dissertation for Harvard on knowledge and experience in the philosophy of F.H. Bradley. F.H. Bradley, but he failed to return for the Viva Voce exam. This thing you find. This is Viva Voce. Viva Voce exam. So you find what? You find कि in 1916 he completed a doctoral dissertation और किसके ऊपर? F.H. Bradley के, और उसका टाइटल क्या था? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलोसफी ऑफ F.H. Bradley। ये टाइटल आपको ध्यान में रखना है, F.H. Bradley के ऊपर था, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलोसफी ऑफ Bradley। Now, here you find marriage. Before leaving the US, Eliot had told Emily Hale that he was in love with her. He exchanged letters with her from Oxford during 1914 and 1915, but they did not meet again until 1927. In a letter to IK late in December 1914, Eliot, aged 26, wrote, uh, I am very dependent upon women, I mean female। सो अगर आप देखिए जितना भी इंफॉर्मेशन है वो किसको बार बार लिख रहा है? आइकन को, जो उनके अमेरिकन फ्रेंड रहे हैं, जो पोए जो क्रिटिक थे और एक तरह से राइटर भी थे, उनको उन्होंने लिखा था, तो उससे रिलेटेड। और उनका अपना अफेयर किससे था? शुरू में यू विल कम टू नो कि उनका अपना अफेयर इबाइली हेल से था। यू फाइंड इबाइली हेल, EMILY, ये चीज ध्यान में रखना है। ही वॉज इन लव विद इबाइली हेल, लेकिन इबाइली हेल से उनका मैरिज नहीं हो पाया था। और यू फाइंड कि ये जो लव उनका था 1914 1915 तक था, लेकिन उसके बाद जो है उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, चाहे वर्ल्ड वार रहा हो या उनका अपना एजुकेशन पूरा हो गया हो, घर लोग चले गए। व्हाट वाज द रीजन? आई डोंट नो, लेकिन इसका जिक्र उन्होंने अपने कई लेटर में किया है जो आइकन को उन्होंने, तो ये नाम ध्यान में रखना है, इबाइली हेल वॉज हिज बिलव्ड। नाउ शेयरिंग विद, उनका जो मैरिज हुआ था किससे हुआ था? विवियन हेग वुड इलियट से। ये उनका पासपोर्ट फोटोग्राफ है। विवियानी हेज वुड इलियट, ये उनकी वाइफ का नाम है, और ये उनकी बिलव का, इवाइली हेल वाज हिज बिलव एंड विवियानी हेज वुड इलियट वाज हिज वाइफ। सो जस्ट शेयरिंग अनदर इमेज, चूंकि मैटर काफी है बायोग्राफिकल स्टडी का। हियर आई वांट टू टेल यू अनदर पॉइंट, दैट इज अ या अगेन यू फाइंड कि उनका यहाँ पे अरिजीत सिंह। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो थेयर थे, जो थेयर से जो मुलाकात उनका हुआ था, जिन्होंने द वेस्टलैंड को पब्लिश किया था, दिस इज द पॉइंट। थेयर इंट्रोड्यूस्ड इलियट टू विवियानी हेवुड। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड इलियट टू विवियानी हेवुड, थेयर, THAYER। और मैंने आपको पहले बताया कि कुछ शख्सियत, कुछ नाम ऐसे विच यू डोंट हैव टू फॉरगेट। नंबर 1 थेयर, एजरा पाउंड, और जो अभी ये मैंने बताया था सिम्बॉलिश मूवमेंट की जो किताब का मामला था उसका, और ईकेन का जो वो थे कि अमेरिकन राइटर था जिसको बार बार, तो ये चीजें। और ये इस फिगर का नाम विवियन हेवुड, इसको आपको नहीं भूलना, विवियन हेवुड, कैम्ब्रिज गवर्नेंस, जो कि कैम्ब्रिज गवर्नेंस थी। they were married and have seen
रजिस्टर ऑफिस ऑन 26 जून 1915। उनकी जो मैरिज हुई है कब हुई है? 26 जून 1915 को। आफ्टर अ शॉर्ट विजिट alone to his family in the United States, Eliot returned to London and took several teaching jobs such as lecturing at बर या बर्कविक कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में बर्कविक कॉलेज था, उन्होंने उसमें जो है क्या किया हुआ था, लेक्चर दिया था। The philosopher Bertrand Russell took an interest in Viviani while the newlyweds stayed in his flat. Some scholars have suggested that she and Russell had an affair, but the allegation were never confirmed. एक और इंटरेस्ट आ गया कहानी में। इंटरेस्ट का मतलब कि कैसे प्रोपागेंडा किसी चीज का होता है या पोस्ट ट्रूथ होता है। इसमें अगर आप देखिएगा एक पॉइंट एक कह रहे हैं कि जब टी.एस. एलियट जो है अपनी वाइफ किसके साथ, विवियानी हेवुड के साथ रुके थे, किसके फ्लैट पर रुके हुए थे? बर्ट्रांड रसेल। और बर्ट्रांड रसेल का नाम हम सारे लोगों ने सुना, बहुत बड़े फिलोसफर थे। तो ये कहते हैं कि उस समय जो है बर्ट्रांड रसेल का इंटरेस्ट किसमें था? इंटरेस्ट विवियानी हेवुड में था, और दोनों जो है लव में भी थे। ये बात लोग ऐसा कहते हैं, एक एलिगेशन, एक चार्ज है जो है, बट इट वाज नेवर कंफर्म। ये चीज ध्यान में रखना है। The marriage was markedly unhappy in part because of Viviani's health problem. In a letter addressed to Ezra Pound, देखिए एक उन्होंने लेटर किसको लिखा? एजरा पाउंड को। इसके पहले कौन सा? आइकेन को ध्यान में रखना, जो मैंने बताया था अमेरिकन राइटर और क्रिटिक थे। इन अ लेटर एड्रेस टू एजरा पाउंड, एजरा पाउंड को एक लेटर लिखी। शी कवर्स एन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ हर symptoms which included habitually high temperature, fatigue, insomnia, माइग्रेन्स, ये सब प्रॉब्लम थी उनको। किसको जो प्रॉब्लम थी जो है? दिस पार्टिकुलर लेडी विवियानी हेवुड को। एंड colitis, this coupled with apparent mental instability mean that she was often sent away by Eliot and her doctors for extended periods of time. So nothing you find, यहाँ पे केवल उनका प्रॉब्लम बताया गया कि क्या क्या चीजें रही है। एंड where she remained until her death of her heart disease in 1947। 1947 में जो है उनका उनका जो डेथ हुआ था 1947 में हुआ था। दिस रिलेशनशिप बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ आवर 1948-84 प्ले टॉम एंड वीव। दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आपको बस इतना ध्यान में रखना है, उनकी पहली वाइफ का क्या नाम था? विवियानी हेवुड। उनकी बिलव्ड का भी नाम आई जस्ट टोल्ड यू कि कैसे कौन मुलाकात करवाया? थेयर ने मुलाकात करवाया। थेयर कौन से थे? वो पब्लिशर थे जिन्होंने उनका द वेस्टलैंड पब्लिश किया था। दिस थिंग, और उन्होंने इस तरह से कॉलेज को ज्वाइन किया। एजरा पाउंड का नाम आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। टू इन्फॉर्मेशन। Now sharing with you another point that is very significant, and in this image you will come to know about what? In this image you will come to know about उनका अपना जो लाइफ है, उस लाइफ में और क्या क्या चीजें आती है। हियर यू फाइंड कि Eliot confessed that I was in love with Viviani simply because I wanted to burn my boats and commit myself to staying in England, and she persuaded herself, also under the influence of Ezra Pound, that she would save the poet by keeping him in England. To her, the marriage brought no happiness. To me, it brought the state of mind out of which came the wasteland. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। द वेस्टलैंड के आने में सबसे बड़ा रोल क्या था? ये रिलेशनशिप का रहा। कौन सा रिलेशनशिप रहा है? विवियानी का और टी.एस. एलियट का। दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन अगर ये मैरिज ना हुई होती तो शायद टी.एस. एलियट इंग्लैंड में रुक ना पाते, और जब टी.एस. एलियट इंग्लैंड में रुक ना पाते तब वो जो है इंग्लैंड के उस मंजर को ना देख पाते और 1922 में द वेस्टलैंड ना आ पाता। एक पॉइंट ध्यान में रखना। आफ्टर लीविंग बर्टन, एलियट worked as a school teacher, most notably at Highgate School in London, where he taught French and Latin. His students included John Bit G. Band, subsequently taught at the Royal Grammar School, High Wycombe in Buckinghamshire. All these things, nothing at all. ये क्वेश्चन पूछा है लॉयड बैंक का। यहाँ पे देखिए, एलियट he took a position at Lloyd Bank in London. एक चीज ये भी है कि इन्होंने जो अपना सर्विस शुरू किया था वो एज अ क्लार्क शुरू किया था, और किसमें जो है? लंदन के लॉयड बैंक में। LLOVDS, लॉयड्स बैंक का ये नाम है। तो ये चीज पूछा जा चुका पीजीटी में, यूपी पीजीटी में। किस बैंक में? लॉयड्स बैंक में।
लंदन के. He started his career as a clerk. So these two information you have to keep here. Now sharing with you another image. In that image you will come to know about here. Here you find a very important information. उनका अपना उसको लेकर के है. यहाँ पे भी लॉर्ड बैंक्स को लेकर के बात कही जा रही है. Yeah. Then you find on a trip to Paris in August 1920 with the artist Wyndham Lewis, he met the writer James Joyce. ये चीज पॉइंट हमेशा ध्यान में रखेंगे. उनकी मुलाकात जो है जब वो पेरिस में जाते हैं 1920 में विद द आर्टिस्ट विंडम लीविस, तब उनकी मुलाकात किससे होती है? जेम्स जॉयस से होती है. और मॉडर्न एज के दो बड़े राइटर थे. जेम्स जॉयस नॉवेल में उनके नॉवेल का नाम क्या था? यूलिसिस था. पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. और जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा निगेटिविटी दोनों लोगों में थी. और आप देखिए कि इसमें लिखते एलियट सेड ही फाउंड जॉयस एरोगेंट. एलियट खुद कहते हैं कि उन्होंने जेम्स जॉयस को एरोगेंट पाया एंड जॉयस डाउटेड एलियट्स एबिलिटी. और जॉयस को संदेह हुआ कि एलियट कोई बड़े पोएट नहीं है एज अ पोएट एट द टाइम उस समय. बट द टू राइटर्स सून बिकेम फ्रेंड. दोनों में मित्रता हो जाती है. और ये मुलाकात कहाँ हुई है? पेरिस में हुई. ये चीज ध्यान में रखना. पेरिस इन अगस्त 1920 में. और किसने कराया था? विंडम लीविस ने. उनके साथ वो गए हुए. दिस 65. Then you find कि Charles Willoughby recommended T.S. Eliot to Geoffrey Faber in 1925. Eliot left Lloyd to become a director in the publishing firm Faber and Dwyer. GWYER. Faber and Dwyer या Dwyer जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो. लेट फेबर एंड फेबर. बाद में यही पब्लिशिंग हाउस किसके नाम से बनता है? फेबर एंड फेबर. ये चीज ध्यान में रखिएगा कि चार्ल्स विल्बी रिकमेंडेड टी.एस. एलियट टू जोफ्रे फेबर. और 1925 में उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और फिर कहाँ पे हो गए? एक पब्लिशिंग हाउस में जिसका नाम फेबर एंड जॉयर था. बाद में फेबर एंड फेबर में. वेयर ही रिमेन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज करियर एट फेबर एंड फेबर. ही वाज रिस्पांसिबल फॉर पब्लिशिंग डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पोएट्स इंक्लूडिंग डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, स्टीफन स्पेंडर, चार्ल्स मैडगे, टेड ह्यूजेस. ये सब चीजें वहां पे उन्होंने किया था. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि वो फेबर एक पब्लिशिंग हाउस था, उससे वो जुड़े हुए थे. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. फेबर एंड फेबर दैट वाज द पब्लिशिंग हाउस. किसने कराया हुआ था? विंडम लीविस ने कराया था वहां उनकी मुलाकात. सो शेयरिंग विद यू अनदर इमेज. हियर यू फाइंड या दिस इज द इमेज. Here I would like to discuss some of his important works. Then I will share some other image also. You find this one. उनका अपना जो सोर्स था क्या क्या था पोयम का. यू फाइंड एक नजर में बस ऐसी सोर्स. टी.एस. एलियट बिब्लियोग्राफी नोबेल प्राइज का से लेकर के क्या क्या चीजें थी. प्रोज में उनका है द बर्ड्स ऑफ प्रे है जो शॉर्ट स्टोरी था. पहली अभी बात की गई तो 1905 में आई है. अ टेल ऑफ वेल है शॉर्ट स्टोरी है 1905 में आई है. द मैन हु वाज अ किंग शॉर्ट स्टोरी है. द वाइन एंड द प्यूरिटन्स रिव्यू है. द पॉइंट ऑफ व्यू है. जेंटलमैन एंड सीमैन है. इगोइस्ट रिव्यू है. ये सब उन्होंने दिया हुआ है. खैर ठीक है, इसको एक नजर में हल्का सा आपको पता होना चाहिए. पोएम्स में क्या है? अ फेबल फॉर फीस्टर्स 1905 में जो पहली पोएम है. एक उनका लिरिक आया था टाइम एंड स्पेस एज सेजेस से. फिर ग्रेजुएशन में ये चीज हुआ था. सॉन्ग आया हुआ था बिफोर मॉर्निंग सर्किल सॉन्ग विल बी कम अक्रॉस ऑन अ पोर्ट्रेट ऑल दिस थिंग. डॉक्टर यू फाइंड. सो नथिंग यू फाइंड. बस एक एट अ ग्लास पे ये वर्क आपको उनका ध्यान में रखना है. जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनका यू फाइंड हियर. जस्ट शेयरिंग अनदर इमेज. हियर यू फाइंड उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है यहाँ पे. या दिस इज अ पोइट्री में उनका प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस. कई बार ये पूछा जा चुका है कि प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस एक कलेक्शन ऑफ द पोएम रहा है. और प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस में कौन कौन सी पोएम आई थी? द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफ्राक आई है. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आई है. प्रील्यूड्स एक कई बार कंफ्यूजन करता है. द प्रील्यूड क्या है? द प्रील्यूड ऑटोबायोग्राफी है. किसका ऑटोबायोग्राफी है? दैट वाज द ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है. नॉट ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफिकल पोयम या एपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड. लेकिन यहाँ पे प्रील्यूड्स है, ये पोयम है. और ये पोयम किसका है? ये पोयम जो है आपका टी.एस. एलियट का है. और प्रील्यूड नाम से किसी ने नॉवेल भी लिखा है. मुझे जहां तक याद आ रहा है डी.एच. लॉरेंस का शायद है वो नॉवेल.
तो ये 3 अलग-अलग चीजें हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर प्रील्यूड्स केवल आता है तो वो भी प्लूरल में अगर रहता है तो वो क्या होगा, वो आपका पोयम है। और ये पोयम किसने लिखा, टी.एस. एलियट ने लिखा। कब आई है, प्रूफ्राग एंड अदर ऑब्जर्वेशन जो उनका पहला पोएटिक कलेक्शन है, यह उसमें तीसरी पोयम रही है। रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट, मॉर्निंग एट द विंडो, द बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट, आंट हेलेन, कजिन नैन्सी, मिस्टर एपोलिनाक्स, हिस्टीरिया, कन्वर्सेशन, गलानाटी, ला पिग्लिया चिक। ये उनका अपना क्या था, जो पहला कलेक्शन ऑफ द पोयम है यह उसका हिस्सा रहा है। दूसरा कलेक्शन ऑफ द पोयम पोयम्स के नाम से आया है 1920 में, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पोयम जीरांशन है। दूसरा बर्बैग विद अ बेडिकर, ब्लेसेस विद अ सिगार, स्वीडी इरेक्ट है, अ कुकिंग एग है, ली डायरेक्टर है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। जीरांशन इंपॉर्टेंट है, जीरांशन पूछा जा चुका है, 1920 का कलेक्शन था। नेक्स्ट यू फाइंड अनदर इमेज शेयरिंग विद यू, दिस वन, yeah, you find this one, cookies, yeah, you find here ki the wasteland you find 1920 में, the wasteland you find, the hollow में 1925 में। एरियल पोएम्स ये पूछा जा चुका है कि एरियल पोएम्स में कौन कौन सी नहीं आती है। जो एरियल पोएम्स एक कलेक्शन ऑफ द पोएम है, 1927 से 1954 के बीच में लिखा गया है। जर्नी ऑफ द मेजाई, ये चीज पूछी जा चुकी है, जर्नी ऑफ द मेजाई कई बार। A Song for Simon, Eddie Bula, Berina, Triumph March, The Cultivation of Christmas Trees, Macavity, The Mystery Cat। ऐश वेस्डे 1930 में आई है। कोरियोलन कोरियोलन 1931 में आई है। ओल्ड पॉसमस बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स 1939 में। द मार्चिंग सॉन्ग ऑफ द Pollicle Dogs and Bill M. Carr, The Remarkable Parrot 1939 में, in the Queen Book of the Red Cross। So remember the Wasteland, the Hollow Man, aerial poems you have to remember। ये पूरा क्या क्या चीजें रही है, all these things। इसके अलावा ये स्वीडी एमंग द नाइटिंगेल, ये भी कोई कलेक्शन ऑफ द पोएम रहा, मुझे लगता है वहां से थोड़ा सा हटा हुआ है। स्वीडी एमंग द नाइटिंगेल भी पूछा जा चुका है। नाउ शेयरिंग यू विद यू अनदर इमेज हियर, that is here you find नॉन फिक्शन में ये उनका प्लेस क्या क्या रहा। और हाँ, एक उनका पोएम फोर क्वार्टेट्स रहा है, ये चीज फोर क्वार्टेट्स 1945 में है, जिसमें बर्ट टार्टन वगैरह पोएम रही है। और एंड यू फाइंड हिज प्लेस, स्वीडी एगोनिस्ट उनका प्लेस है, पब्लिश इन 1926, फर्स्ट परफॉर्म इन 1934। द रॉक उनका प्ले है, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल कलर, द एल्डर स्टेट्समैन। ये उनका नॉन फिक्शन रहा है। मतलब कि नॉन फिक्शन का मतलब उनका क्रिटिकल एसेज और उनका वर्क और सब चीजें। क्रिश्चियनिटी एंड कल्चर, द सेकेंड ऑर्डर माइंड, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, अभी हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। और एक क्रिटिकल एसे के रूप में 1917 में आया हुआ है, द सैक्रेड वुड, एसेज ऑन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म। और ये चीज देखिएगा कि द सैक्रेड वुड एक क्रिटिकल वर्क है, और इसी में आया हुआ है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम आपका जो है 1919 में आया हुआ था, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 में। लेकिन ये कलेक्शन बाद में, द सैक्रेड वुड एक किताब है, एसेज ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म 1920 में, इसमें उसको कलेक्ट किया गया। होमेज टू जॉन ड्राइडेन, शेक्सपियर एंड द स्टोइसिज्म ऑफ सीनेका, फॉर लैंसेलॉट एंड ड्यूस, दांते, selected essays, these six you find। तो ये सब उनका नॉन फिक्शन, उनका प्लेस, you have to learn it। Sharing with you another image here, yeah, you find this one। उनके वर्क को लेकर के ये लास्ट इमेज होगा। द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 में पूछा जा चुका है। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स, एलिजाबेथन एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न,
ये भी आ चुका है। द आइडियाज ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी, ये भी आ चुका है। अ चॉइस ऑफ किपलिंग वर्सेस मेड बाय एलियट विदिन अ रेसिया रूडयार्ड किपलिंग, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछा जा चुका है। नोट्स टूवर्ड द डिफिनेशन ऑफ कल्चर 1948, पोइट्री एंड ड्रामा, द थ्री वाइसेस ऑफ पोइट्री, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन पोइट्री एंड पोएट, ये चीजें उनका रहा है। उनके मरने के बाद कौन सा, टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक, पोएम्स रिटन इन अर्ली यूथ, द वेस्ट लैंड, फैसिमाइल एडिशन, इनोवेशन ऑफ द मार्स। तो दीज आर द वर्क जो नॉन फिक्शन और फिक्शन का वर्क था। ये सब चीजें आपको क्या करना है, एट अ ग्लांस में आपको ध्यान में रखना, खासकर यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, essays ancient and modern, the idea of a Christian society. These things you have to remember. Poetry and drama, notes toward the definition of culture. इधर जितना भी आर्ट पोएट्स, पोइट्री एंड पोएट्स, द फ्रंटियर्स, क्रिटिसिज्म, थ्री वाइसेस ऑफ पोइट्री, all these things you have to remember. You can't miss these works. So you find these things. One and two images I have, थोड़ा सा मैं उसको जल्दी पढ़ के conclude करूंगा. Only I will take 2 or 3 minutes. Only I will take. सो यू फाइंड दिस इमेज, एक आप इसमें देखिए उन्होंने उनका कन्वर्जन कैसे हुआ था। एक कन्वर्जन का इन द सेंस कि उन्होंने 1927 में उनको नागरिकता मिली थी। किसकी नागरिकता मिली थी, इंग्लैंड की या ब्रिटिश सिटीजनशिप ही गॉट। उसके पहले वो बैंक में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। और ऑन अ ट्रिप टू पेरिस इन अगस्त 19, ये तो मैंने बता दिया था कि उनका मुलाकात उनसे हुआ था। और फिर फेबर एंड फेबर का ये चीज कुछ शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। आई हैव डन दिस 1 or 2 इमेज आई हैव। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रह गया है। यू फाइंड इट हियर, दिस वन। यू फाइंड दिस वन। उनकी जो मौत है वो कहाँ पे होती है, 1965 में होती है। और एंड वाज क्रीमेटेड गोल्डर्स ग्रीन क्रीमेटोरियम, उस कब्रिस्तान का नाम है गोल्डर्स ग्रीन क्रीमेटोरियम। इन अकॉर्डेंस विद हिज विशेस हिज ashes were taken to सेंट माइकल, उनके ashes को सेंट माइकल एंड ऑल एंजल्स चर्च ले जाया गया। ईस्ट कॉकर, द विलेज इन समरसेट फ्रॉम वेयर which his Iliad ancestor had immigrated to America. A wall plaque in the church commemorates him with a quotation from his poem ईस्ट कॉकर से उनका एक पोयम था जिसमें हमेशा पूरा इन माई बिगनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगनिंग। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ये एलियट का कोटेशन है जो उस चर्च में है। और ये कहाँ से लिया गया, ईस्ट कॉकर से लिया गया है। और हमेशा उस चर्च में उस वो चीज वहां पे है जो कि इस कोटेशन को वहां यूज किया गया है। In 1967, on the second anniversary of his death, Eliot was commemorated by the placement of a large stone in the floor of Poets Corner। और बाद में उनको पोयर्स कॉर्नर लंदन के वेस्टमिंस्टर अबे में दफन किया जाता है। द स्टोन कट बाय डिजाइनर रेनॉल्ड्स स्टोन, रेनॉल्ड्स स्टोन ने उसको डिजाइन किया था विथ हिज लाइफ डेट्स। और उनका अपना उसपे ऑर्डर ऑफ मेरिट जो अवार्ड था उसको। और एक कोटेशन है जो उनकी छोटी पोयम लिटिल गिडिंग से लिया गया। ये दो क्वेश्चन ध्यान में रखना। उनकी कब्रिस्तान पर जो उनका कब्र है वेस्टमिंस्टर एबे में, वहां पे उस कब्र पर कुछ लाइनें लिखी गई है जो कहाँ से लिया गया, उनकी पोयम लिटिल गिडिंग से लिया गया। उस पे क्या लिखा गया है, द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज टंग्ड विद फायर बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर ये पूछा जाता है कि उनकी कब्र पे जो ये लाइनें हैं ये किसकी लाइनें, खुद टी.एस. एलियट की है जो उनकी पोयम लिटिल गिडिंग से लिया गया है। उनकी कब्र का जो डिजाइन तैयार किया था किसने किया था, रेनाल्ड स्टोन ने। जो वहां पे स्टोन की स्क्राइब, उस पर जो स्क्राइब किया गया था वो किया गया है। बाकी जो है चर्च में जो ईस्ट कॉकर जो उनके पोयम से इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, इन माई end is by beginning, these things you find. So these are the two important information which you have to remember. Now the next point, here I would like to share this one.
उसमें उन्होंने कुछ अपना वो दिया हुआ इंटरव्यू दिया हुआ है, और उसमें क्या लिखा है कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इन 1959 एलियट सेड ऑफ हिज नेशनैलिटी एंड इट्स रोल इन हिज वर्क, I would say that my poetry has obviously more in common with my distinguished contemporaries in America than with anything written in my generation in England. That I am sure of. It would not be what it is, and I imagine it would not be so good putting it as modestly as I can. It would not be what it is if I would be born in England, and it would not be what it is if I stayed in America. It is a combination of things. एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स बट इन इट्स सोर्सेज, इन इट्स इमोशनल स्प्रिंग इट कम्स फ्रॉम अमेरिका। जब उसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी जो पोइट्री है ये इंग्लैंड की देन है, अमेरिका की देन है, अगर आप इंग्लैंड में रुक के ऐसा काम किया, अगर आप अमेरिका में रुके होते तो क्या इस तरह का काम हो पाता, तो उन्होंने कहा कि जो मेरी पोइट्री है वह कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स का है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें इंग्लैंड भी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसका जो इमोशनल अटैचमेंट है वह इमोशनल अटैचमेंट अमेरिका का है। बाकी जो है, जो उन्होंने देखा जो है बैरन लैंड या वेस्ट लैंड इंग्लैंड में, वो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया। These things you find. Cleo McNally Curls notes in her biography that Eliot was deeply influenced by Indic tradition, notably the Upanishad. Eliot जो है उपनिषद से बहुत प्रभावित, ये बात किसने कही है? क्लियो मैकनेली ने। From the Sanskrit ending the wasteland, what Krishna meant. The wasteland का what Krishna means section of 4 parts shows how much Indic religion and more specifically Hinduism made of his philosophical basic for his thought process. It must also be acknowledged as Chinmay Guha showed his book where the dreams across T.S. Eliot and French poetry that was deeply influenced by French poet from Baudelaire to Paul Valéry. हर आदमी ने अपने अपने ढंग से बताया कि यहाँ से प्रभावित थे, कोई कहे फ्रेंच पोएट से, और लेकिन एक बड़े हो रही है बायोग्राफर क्लियो मैकनेली, उन्होंने कहा कि वो इंडियन फिलोसफी या वह खासकर उपनिषद से प्रभावित थे, ये चीज उन्होंने दावा किया हुआ है। So this point you find, and the next one, that is the last image I think of today's class. You find it here, and this one is here you find कि उनका कैसे एंग्लिक उसका वो था। इन दिस इमेज यू डोंट फाइंड एनीथिंग मोर, बट यू फाइंड कि कैसे उन्होंने 1927 में एंग्लो कैथोलिसिज्म का उन्होंने वो किया था, कैसे कन्वर्जन उनका हुआ था, ब्रिटिश सिटीजनशिप उनको मिली थी, और फिर उनका इंटरेस्ट किसमें था? एंग्लिक कैथोलिसिज्म में, ही बिकेम अ कैथोलिक। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है। और एक कोटेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो कहते हैं प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ कि क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ये चीज रट लीजिएगा, अक्सर करके ये चीज पूछा जाता है कि हु सेड दिस। ही हिमसेल्फ प्रोक्लेम्ड दैट क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ये पॉइंट बस ध्यान में इसमें रखना है। Now you find this one, and just sharing the एक और पॉइंट था जो मुझे अभी याद आ रहा है। This one you find, that is the नथिंग मोर यू फाइंड हियर। इसमें भी ऐसा कुछ हो रही है उनकी लाइफ को लेकर के, बस जस्ट कंक्लूडिंग, नथिंग मोर हियर यू फाइंड। So in this way you came to know about what? In this way you came to know all these works at a glance में जो था, I have done it, उनका बायोग्राफिकल स्टडी है। लेकिन अभी इनके हमें इस एलियट पे दो पार्ट को और कवर करना पड़ेगा। एलियट की जो पोएम्स है, एक उनका डिटेल्ड स्टडी एट अ ग्लांस में उनकी पोएम में क्या क्या बातें बताई गई है, और एक उनका क्रिटिसिज्म का
अभी केवल एक पार्ट लिया गया है इम्पर्सनल थियरी, लेकिन उसके अलावा उनका ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट वही लिया गया है। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम है, एंड वन थिंग यू फाइंड कि मेटाफिजिकल पोएट्स है, उस पर भी आई विल टॉक टुमारो, बट टुडे आई हैव कवर्ड व्हाट हिज बायोग्राफिकल स्टडी। अब अगर आप जब भी बायोग्राफिकल स्टडी और उनके वर्क को लेके बात करेंगे तो यू विल कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। अगेन आई एम सेइंग कि यू हैव टू नोट डाउन, you have to work on T.S. Eliot. You must know कि what the philosophy he has, whom he was influenced, who were the figures that influenced him, इससे उनके एक असर पड़ा होगा। ठीक हो, जस्ट